Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates from top events from past week that happened in the cryptoverse. I am Ruchi Sharma. And I am Manoj Dara. And Ruchi, let's get started with the first story of the day. Cryptocurrencies extended gains on Monday, helped by gains in Bitcoin and Ethereum ahead of the Fed event, as Fed was expected to increase interest rate by 75 basis points. Bitcoin, the largest cryptocurrency, has gained 7.2% in the last 7 trading sessions, while Ethereum added 21% during a similar time span. The most popular meme coin, Dogecoin, has had a great week in the crypto market. Enjoying a spectacular rally of nearly 170%, Doge has been on a tear since Musk's takeover of Twitter. Further, crucial events could be the next CPI data, which will be released on November 10th, and the US unemployment rate for October, which will be released on November 4th. These will play a key role in the overall cryptocurrency market. With its latest announcement, the Federal Reserve has raised interest rates for the 6th consecutive time. Additionally, it is the 4th consecutive time that it has increased rates by 75 basis points. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market cap, was trading at $20,600, up 1.5%. Ethereum, the second largest crypto, was up by 2%, trading at $1,580. तो यहाँ पर चौथी बार जो है 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुआ है, और जो भी सारे पूरे डेटा पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को. So Ruchi, you have to understand that, और हमारे व्यूअर्स को हम टाइम टू टाइम बताते भी आ रहे हैं कि यहाँ पर यूएस का जो इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी है वो इन्फ्लेशन को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है. जी. अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है. यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑल्दो दिस इज द 4th 75 बेसिस पॉइंट कंसेक्यूटिव उन्होंने बढ़ाया है, 6th कंसेक्यूटिव टाइम्स उन्होंने ओवरऑल मे बी 50 बिप्स बढ़ाया है. एंड देयर इज एक्चुअली अ ब्रॉड, अगर मार्केट अगर हम देखें तो ब्रॉड एक्सपेक्टेशंस दैट इंटरेस्ट रेट यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है. सो एक बहुत बड़ा कंसर्न तो है ही, बट यहाँ पे जो नंबर्स जो हैं सीपीआई के नंबर्स हैं वो दैट इज इम्पॉर्टेंट. अगर वहाँ पर अगर कुछ कूलिंग ऑफ अगर उनको देखने मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर मार्केट विल अप्रिशिएट इट, और यहाँ से लेकर इट विल हेड नॉर्थवर्ड्स. So moving on, Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman has said framing crypto assets would be one of the 8 priority that are still in the works for the nation's year-long G20 presidency, which will begin next month, during a speech at a think tank on Tuesday. Sitharaman had earlier mentioned crypto would be on the agenda of its G20 presidency, but this is the first time she has stated it would be one of the unfinalized priorities. Sitharaman said, "We need to encourage the IMF, which is the International Monetary Fund, FSB, Financial Stability Board, and OECD, which is the Organization for the Economic Cooperation and Development, and other bodies to understand how crypto assets can be regulated, with all countries being on the board." That is something, which is the top priority. दिसंबर में जो इसकी प्रेसिडेंसी है G20 की, वो इंडिया के पास आने वाली है, और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि उनके पास 8 एजेंडाज हैं, ऑल्दो और उसमें से फर्स्ट जो एक टॉप प्रायोरिटी है वो क्रिप्टो को लेकर भी है. एंड वहाँ पर एक ग्लोबल कोऑपरेशन का जरूरत है. दैट्स व्हाट दे हैव बीन मेंशनिंग फ्रॉम लास्ट से मे बी ऑल 2 or 3 quarters, एंड दे विल डेफिनेटली मूव टूवर्ड्स इन अ डायरेक्शन जहाँ पर एक प्रॉपर रेगुलेशंस, एक प्रॉपर टैक्सेशन तो उन्होंने अनाउंस किया ही हुआ है, और उसका एक इम्पैक्ट हमने देखने मिला है. ओवरऑल जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो इंडिया में और जो कंपनीज है, दे हैव मूव्ड आउट ऑफ इंडिया, राइट. और देयर वर ब्रॉडर कंसर्न्स एज फार एज मनी लॉन्ड्रिंग, हमने देखा था, टेरर फाइनेंसिंग, एंड देयर आर लॉट अदर एक्टिविटीज. चाइनीज लोन ऐप का हमने देखा था, एक बहुत बड़ा एपिसोड हुआ था. तो ये बहुत ही एक प्रेशर पॉइंट्स है गवर्नमेंट के ऊपर, and they are definitely going to resolve this. Moving on, Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das on Wednesday said that the trial launch of the central bank digital currency is a landmark achievement. Reserve Bank is among the very few central banks in the world which have taken this initiative, the governor said at the annual banking conference organized by Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry and Indian Banks Association on Wednesday. तो यहाँ पर CBDC का जो पायलट है वो शुरू हो गया, तो एक बहुत अच्छा मैं कहूँगी कि एक शुरुआत हुई है, और जो CBDC का ही जो रिटेल पार्ट होगा वो भी इसी महीने के एंड में हो जाएगा. बिल्कुल होलसेल है, होलसेल एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी. कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है
वो कम हो जाएंगे और ये देखना पड़ेगा कि आरबीआई को कितना कॉस्ट बचता है। एंड देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिटेल पर उन लोग ऑल्दो उनका काम शुरू हो गया है और जो भी है उन्होंने अनाउंस किया है कि ये मंथ एंड तक उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। बट एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि एट अ टाइम व्हेन यूपीआई जो एक मोस्ट सक्सेसफुल पेमेंट मेथड इंडिया में है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो इंडिया के जो ट्रांजैक्शंस है इट इज फार, आई मीन बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो हमारे इंडिया में हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर में चाइना के कंपैरिजन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और यूपीआई वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में सक्सेसफुल पेमेंट मेथड है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये सीबीडीसी जब रिटेल सेगमेंट के लिए लॉन्च करेंगे उसका रेलेवेंस एंड उसका इंपॉर्टेंस कितना रहेगा। बिल्कुल। Moving on, the Indian Taxation Authority has proposed new changes to the filing of income tax returns that could have a significant impact on those who own virtual digital assets or cryptocurrencies, as well as those who invest in DAOs. The Central Bank of Direct Taxes has proposed a new common tax return, which is actually the largest consolidated existing income tax returns in order to make the process more efficient. However, the proposal also seeks information from Indians living abroad about any business connections they may have in India, as well as whether the entities has a significant economic presence in India, particularly businesses from which they derive income. So actually this is actually a big concern, because यहाँ पर if you are living outside India या फिर आप NRI हैं या अगर आप कोई भी बिजनेस क्रिप्टो रिलेटेड इंडिया के साथ में अगर करते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा एक टैक्स का एक जो है हैमर वो आपके ऊपर आएगा ही। और अगर इंडिया अगर हम देखें तो इट इज एक्चुअली हैज इम्प्लाइड लॉट ऑफ टैक्सेस एज फार एज द क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज कंसर्न। टैक्सेशन को लेकर वॉल्यूम्स भी ड्रॉप हुए हैं। हमारे जो एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, उनके जो वॉल्यूम्स हैं वो प्लमेट हुए हैं 80 to 85%। और यहाँ पर लेकर अगर ये मूव अगर इम्प्लाई हो जाता है और ये में भी अनाउंस किया है, उसका इम्प्लीकेशन हम देखना पड़ेगा कि क्रिप्टो का नामो निशान यहाँ से इंडिया से मतलब आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज को कितना आगे बढ़ावा मिल सकता है। एक और ये टर्न मूव है, इट्स अ स्ट्रिक्ट मूव एंड वी हैव टू सी दैट इंडस्ट्री इसको कैसा रिसीव करती है। Moving on, India's crypto industry has formed a new advocacy body almost 4 months after the previous one was disbanded under cloudy circumstances. The body will be called Bharat Web3 Association, a shift in branding towards Web3 from the earlier Blockchain and Crypto Asset Council, which was BACC. Leading members of the new association involve Polygon, Hike, CoinDCX, CoinSwitch Kuber, ZepPay and WazirX, making it the most prominent Web3 advocacy in the country. तो चलिए बीएसीसी का तो जो है डिसॉल्व हो गई थी, अब एक नई बॉडी तैयार हो गई है और इसके अंडर भी जैसे कहा जा रहा है कि देखा जाएगा कि Web3 को कैसे बढ़ाया जाए या फिर टेक्नोलॉजी को कैसे पुश किया जाए, इनोवेशन को कैसे पुश किया जाए और कैसे जो भी कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए या रेगुलेशंस को और अच्छी तरीके से लेकर आए। तो ये सब काम जो होगा इस बॉडी के अंडर होगा एंड आई होप इसका फ़ायदा हो। हाँ, ऑफ कोर्स ये जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं जो इंडिया इज टेकिंग टुवर्ड्स रेगुलेशन, आई थिंक सो दिस विल प्ले अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, राइट। Moving on, Changping Zhao, Chief Executive Officer of Binance Holding Limited, said India's onerous taxes on cryptocurrency taxation will probably kill the industry. So India has high tax which is probably going to kill the industry, Zhao said in a live stream remarks during a panel at FinTech conference in Singapore on 3rd November. So हम थोड़ी देर पहले वही हम बता रहे थे कि हमारे व्यूअर्स को कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेगुलेशंस को लेकर एक बहुत बड़ा एक स्ट्रिक्ट इंडिया का अप्रोच रहा है। और यहाँ पे जैसे टैक्स एम्प्लॉय जो हुए हैं, ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड इंडिया बट डूइंग बिजनेस ऑफ क्रिप्टो इन इंडिया या फिर उनके हेडक्वार्टर्स बाहर हैं, तो दैट इज समथिंग। वहाँ पर हमने इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े जो नाम है जेंगपिंग जाओ, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज किया हुआ है बिकॉज इफ यू गो बैक WazirX और बिनेंस का एक बहुत बड़ा स्पैट हुआ था और वहाँ पे थिंग्स डिडंट वर्क आउट दैट राइट। हाँ, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था कि यहाँ पर जो कि बाहर के क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं रादर, वो इंडिया में आके बिजनेस करना कितना वायबल है। सी रुचि, एक छोटा सा एक स्टैट्स हमारे व्यूअर्स के लिए हम शेयर करते हैं कि
अगर आप देखें तो क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड एक्सचेंजेस लास्ट 5 इयर्स में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल से और एक पीरियड से गुजरे हैं, जहां पर हमने देखा कि 2021 में एक बहुत बड़ा एक पीक भी हम लोगों ने हिट किया था। अगर आप स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट्स का अगर हिस्ट्री देखें तो ये 100 साल पुरानी उनकी हिस्ट्री है। अगर डीमैट अकाउंट्स हम देखें तो रफली अराउंड 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है, रफली, थोड़ा आगे पीछे होगा, बट ये लास्ट 5 साल में जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने जो ग्रोथ दिखाई उसकी वजह से जो वॉलेट्स लगभग 12 करोड़ वॉलेट्स ओपन हुए हैं इंडिया में। सो दैट वाज द रीजन व्हाई आवर गवर्नमेंट गॉट कॉशियस, और यहाँ पे लेके जो एक ग्रोथ हमने देखने मिली है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और इसका इम्प्लीकेशन हमने तभी देखा जब टैक्सेस को लागू किया गया था, और वहाँ पे सारे के सारे हमारे जो वॉल्यूम्स है वो कम हो गए। तो पोटेंशियल बहुत है, बिकॉज ऑल द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड आर आइंग इंडिया एज एन अपॉर्चुनिटी, बट यहाँ पर टैक्सेशन को लेकर जो एक बहुत बड़ा बैरियर है वो अगर क्लियर होता है, दैट विल ओपन द डोर फॉर ऑल द एक्सचेंजेस व्हिच हु वांटेड टू participate in India and India growth story. Really. Moving on, cryptocurrency options and future exchange Deribit has been hacked with $28 million being drained from its hot wallet. The company tweeted that client assets have not been affected, but withdrawals have been temporarily halted as the exchange makes security checks. Its company procedure to keep 99% of our user funds in cold storage to limit the impact of these types of events. तो यहाँ $28 मिलियन का हैक तो हुआ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो क्लाइंट का पैसा है या फंड्स है वो कहीं ना कहीं सेफ है, क्योंकि उनका कंपनी पॉलिसी है कि वो 99% जो है क्लाइंट का फंड को कोल्ड वॉलेट्स में रखते हैं। उसके साथ साथ ये भी है, जो अक्टूबर था वो वैसे भी हैकटोबर उसको कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैक्स हुए, जहाँ पे अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते में ही ऑलमोस्ट $718 मिलियन के हैक हमने देखे हैं। Right, exactly, और hacking related activities. In fact, 2022 का अगर हम देखें, YTD roughly around $3 billion worth of funds were stolen. Really? और ये जो बंटी और बबली हैं जो क्रिप्टो करेंसी के, वो बहुत ज़्यादा मतलब इनफैक्ट एक्शन में रही हैं, बट इनफैक्ट यहाँ पे ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद इन्वेस्टर्स के जो फंड्स हैं वो सेफ हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। All right, moving on. In collaboration with the Central Bank of 4 countries, the Central Bank of the United Arab Emirates has completed the world's largest pilot of central bank digital currencies. The multinational CBDC pilot was part of Project mBridge, in which central banks from Thailand, Hong Kong and China participated. So, ये एक नेक टू नेक चल रहा है। इंडिया का एक बहुत बड़ा जो CBDC का जो पायलट है वो भी है, और दुबई जो है यूएई का है वो भी आ रहा है साथ में। तो रुचि एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है दुबई का, जहाँ पर एक वर्ल्ड का जो एक ट्रेड का एक बहुत बड़ा पोर्शन वो कमांड करता है वो, और वहाँ से अगर CBDC का अगर हम देख रहे हैं इनिशिएशन और फॉर दैट मैटर पायलट, तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कभी लॉन्च होगा, और वहाँ पे लेके ग्लोबल ट्रेड पे कितना इम्पैक्ट होगा, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व। एंड वन मोर थिंग, इंडिया का और दुबई का आप देखें कि बहुत ज्यादा ट्रेड भी होता है, तो इट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट कि ये ट्रेड कितना स्विफ्ट होगा, इसके इंपॉर्टेंस क्या होंगे, दोनों भी गवर्नमेंट का कितना कॉस्ट बचेगा, ट्रेडर्स का कितना कॉस्ट बचेगा, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को कितना बेनिफिट होगा, दैट विल ओनली टाइम विल टेल। मूविंग ऑन। One of the world's biggest payment processor, Visa, has announced the launch of a new collection christened Visa Masters of Movement. The collection is designed to engage football fans during the FIFA World Cup, which will be held in Qatar. The Visa Masters of Movement collection will feature unique avatars, digital artworks, and other collectibles. All of these will be curated and inspired by the FIFA World Cup and the FIFA Women's World Cup competitions. The NFTs in the collection take inspiration from iconic goals scored by 5 individual footballers, which will be minted into NFTs. तो अभी इनका जो बिडिंग शुरू हो चुकी है NFTs की, 2 तारीख को शुरू हुई थी, 8 तारीख तक बिडिंग रहेगी, और एक बहुत ही अच्छा फीफा फैन फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है, जो कि अभी 19 नवंबर से शुरू होगा और 18 दिसंबर तक चलेगा। 1 महीने का वो ये फैन फेस्टिवल होगा। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस वे ऑफ एक फीफा का जो फैन क्रेज, हाँ, उसको एक नए लेवल पर ले जाने का भी एक अच्छा तरीका, और साथ में NFTs को इंट्रोड्यूस करना और उसको भी हाइप पर ले जाने का भी एक बहुत अच्छा ये इंटीग्रेशन है। So just to add to what you have said, because this comes at a time when the entire cryptocurrency market तो नीचे है, NFT के वॉल्यूम्स भी ड्रॉप हुए हैं, हमने एक्सटेंसिवली ये कवर भी किया है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो
ये स्टेप्स से फैन एंगेजमेंट बढ़ेगा, एनएफटी के वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और एक होप मिलेगा इंडस्ट्री को वापस से. आई मीन दिस इज एक्चुअली अ पम्प प्राइम एक्टिविटी जहां पर आर्टिफिशियल एक्टिविटी करके आप उसको जैकअप करते हैं वॉल्यूम्स को. एंड ये देखना पड़ेगा कि ये कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है आपके बहुत सारे वर्ल्ड कप्स भी आएंगे और बहुत और ये देखना पड़ेगा कि ये फैन एंगेजमेंट कितना सक्सेसफुल होता है एज अ प्रोजेक्ट. बिल्कुल. All right, moving on. Gucci is the first luxury brand to build its own space within the digital real estate platform, The Sandbox, cementing its place as a first mover in the metaverse. Gucci Vault Land, as an experiment concept, will remain open till November 9th. Through a play-to-known narrative, players can explore the vault in 360-degree and complete activities for a chance to win an exclusive reward and Sand, the Sandbox's utility token, currently which is built on Ethereum. So this is something which we have to अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी हो रही है, आप वो सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक भी करते हैं. तो ये फैशन और एनएफटी का जो ये कॉन्सेप्ट है, तो आई मीन दिस इज समथिंग विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग. तो जो भी फैशन इंडस्ट्री है वो इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है, एंड गुची इज़ द फर्स्ट वन टू डू इट, बिकॉज यू कैन हैव फैशन शोज इन द मेटावर्स, यू कैन एक्चुअली डिस्प्ले योर न्यू कलेक्शन इन द मेटावर्स, एंड यू कैन गैदर मोर ऑडियंस एंड मोर क्लाइंट्स फॉर इट. तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड जैसे कि इसमें बताया भी है कि बहुत से रिवॉर्ड्स में वो दे रहे हैं इस एक्टिविटीज़ के साथ. सैंड जो टोकन है या करेंसी वो भी वो गेन कर सकते हैं या अर्न कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. हमने तो ये देखा है कि ये फिजिकल बैग्स का तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता ही है, बट ये अगर ऑप्शन हमारे विमेन मतलब आई मीन द सेगमेंट को अगर पता चल जाएगा तो वो देखना पड़ेगा कि जो हमारे वॉलेट में जो करेंसी है उस पर इम्पैक्ट क्या आता है. दैट ओनली टाइम विल टेल. All right, that's all there is in a special segment of Weekly Wrap. This is Manoj Dara signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. Have a great weekend. Thank you.